नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास ऑन द सेक्शन 16 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो लेट्स स्टार्ट विद द section 16 of the limitation act. Very important for your prelims and also very important for your mains. Write down it. And this is basically, I can say, very important for your mains. I am repeating it, very important for your mains. And this is the question for you. This is the question: which of the following sections of the limitation act deals with the effect of death on or before the accrual of right to sue? Effect of death को which sections deals with the effect of death, and this is section 16. तो this is the form of your prelims question. ऐसे heading से question आया हुआ है यहाँ से. And again saying, please इसको आप लोग जितना ज़्यादा अच्छी तरह याद करेंगे उतना आपके फायदे में इसमें कर लेंगे. Next please. Now I go to the Bare Act language of this. This is the 16 clause 1. What is this? Where a person, try to understand the language. थोड़ी सी इंग्लिश का भी कमाल है यहाँ पर, थोड़ा ध्यान रखना. Where a person who would if he were living, जहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति जो कि यदि जीवित होता, if he were living, जीवित होता, have a right to institute a suit or make an application. These are the 2 points. Suit or application. Please highlight these words. Section 16 is applicable in case of suit or application. It means the word appeal is not here. It means this section is not applicable in case of appeals. The second question of prelims, ठीक है? Section 16 is not applicable in case of appeals. आगे बात समझ में? Where a person who would if he were living have a right to institute a suit or make an application dies before the right accrues. ये लाइन है फिर आपको, dies before the right accrues, ठीक है? Or where a right to institute a suit or make an application accrues only on the death of a person. क्या? Right to institute a suit or make an application accrues only on the death of a person. तब क्या होगा? इसको समझने के लिए एक मिनट ये देख लीजिएगा. The period of limitation shall be computed from the time when there is a legal representative of the deceased capable of instituting such suit or making such application. So this is the Bare Act reading of the section 16. To understand it in a better way, you please go to this slide now. This is, try to understand this. Where a person dies, ऐसे समझिए, before the right accrues to him. एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है. कब होती है डेथ? When dies before the right accrues. कौन सा राइट? राइट टू इंस्टीट्यूट ए सूट और मेक एन एप्लीकेशन. द पर्सन डाइज कब? द पर्सन डाइज बिफोर द राइट एक्रूज. इससे पहले उसको राइट एक्रू होता, उसको राइट इसके अंदर वेस्टेड होता, उससे पहले उसकी डेथ हो जाती है. कौन सा व्यक्ति है ना? इफ ही वर लिविंग, अगर वो जीवित होता तो क्या होता? He would have a right to institute or make an application. आप बात समझ गए? अगर वो जीवित होता तो उस व्यक्ति के पास right to institute the suit होता या right to make an application होता, but such person dies before the right accrues. आगे बात समझ में? This is the, ये इस लैंग्वेज में था आपके सामने है. Where a person who would, है ना, if he were living have a right to institute a suit or make an application dies before the right accrues. ये 3 लाइन आपको समझ में आ गई तो प्लीज रेज हैंड. देखिए इसको ऐसे पढ़िए. Where a person, ऐसे समझो, देखो भाई इसको ब्रेक करके समझा रहा हूं मैं. Where a person, जब कोई व्यक्ति dies, मर जाता है, सही है? कौन सा, कब मर जाता है? Before the right accrues to him. जब उससे पहले कि उसको राइट कौन सा? राइट टू इंस्टीट्यूट ए सूट और मेक एन एप्लीकेशन. सपोज कीजिए कि एक व्यक्ति ने आपको 10 लाख रुपए लोन के दे दिए, है ना, और आपसे कहा था कि आपको 1 महीने के लिए देने हैं बस ये.
1 महीने के लिए 1 तारीख को दिए, 30 आपको 30 अप्रैल को वापस करने थे आपने, तो 30 अप्रैल को आपने वापस नहीं किए, मान लीजिए 29 अप्रैल को उस व्यक्ति की डेथ हो गई, समझ रहे हैं अभी, 30 तारीख को उसको राइट टू फाइल द सूट टू मेक एन टू इंस्टीट्यूट अ सूट एक्रू हो जाता। अगर वो व्यक्ति जीवित होता तो उसके पास वो राइट होता आपको सू करने का। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ही डाइज, अगर इफ ही वर लिविंग, यदि वह व्यक्ति जीवित होता, देन ही वुड हैव ए राइट टू मेक ए इंस्टीट्यूट और मेक एन एप्लीकेशन। अगर वो 30 तारीख को जीवित होता तो 30 तारीख को अगर पास से वापस नहीं दे रहे हैं, कॉज ऑफ एक्शन राइज हो गया, इसका मतलब ही वुड बी हैविंग राइट टू मेक ए सूट टू इंस्टीट्यूट ए सूट अगेंस्ट यू। समझ में आता है कि नहीं? सच पर्सन डाइज। अब ये बात समझ में आ गई तो रेज हैंड अप एवरीवन, ठीक है। नाउ सेकंड सिचुएशन क्या है? वेयर ए राइट टू इंस्टीट्यूट ए सूट और मेक एन एप्लीकेशन एक्रूज ओनली ऑन द डेथ ऑफ द पर्सन। एक है सिचुएशन कौन सी? बिफोर की। दिस इज दो सिचुएशन हो गई पहले में। एक है डाइज बिफोर द राइट एक्रूज, 29 तारीख को डेथ हो गई। एक है एक्रूज ओनली ऑन द डेथ ऑफ द पर्सन, वेयर ए राइट टू इंस्टीट्यूट ए सूट और मेक एन एप्लीकेशन एक्रूज ओनली ऑन द डेथ ऑफ द पर्सन। इसकी हेडिंग से चल जाएगा पता आपको, सेक्शन 16 की, इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन और बिफोर। डेथ कब हो रही है? डेथ ऑन और बिफोर द एक्रूअल ऑफ राइट, यानी कि 30 तारीख को डेथ हो जाए। समझ में बात आपको? या उस व्यक्ति की डेथ या तो बिफोर एक्रूअल टू राइट हो गया, या जिस डेट पर उसको राइट टू उस डेट पर उसको डेथ हो जाए उसकी। तो डेथ मस्ट हैपन बिफोर, ऑन और बिफोर द राइट एक्रूअल ऑफ द राइट। बात समझ में आ गई? रेज हैंड प्लीज। समझ में आ गई? क्योंकि टेक्निकल होती है, समझना पड़ेगा इसको। तो ये आप लोग अगर ब्रेक करके पढ़ेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। सही है? तो दिस इज, ये समझ गए आप लोग। वेर ए पर्सन, कौन सा व्यक्ति? इफ ही वर लिविंग, यदि वो व्यक्ति जीवित होता, देन ही वुड हैव ए राइट टू इंस्टीट्यूट ए सूट और मेक एन एप्लीकेशन। सही है? उसको ये राइट मिलता है, ही विल बी हैविंग राइट टू इंस्टीट्यूट ए सूट और मेक एन एप्लीकेशन। ही डाइज, सच ए पर्सन डाइज बिफोर राइट एक्रूज। आई होप इट इज। नो, सेकंड क्या था? वेयर ए राइट टू इंस्टीट्यूट ए सूट और मेक एन एप्लीकेशन एक्रूज ओनली ऑन द डेथ ऑफ द पर्सन। क्या मतलब? राइट टू इंस्टीट्यूट ए सूट और मेक एन एप्लीकेशन कब? इट एक्रूज ओनली ऑन द डेथ ऑफ द पर्सन। तो दीज आर टू डिफरेंट सिचुएशंस डीलिंग विद 16(1). राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग ओनली 16(1) का पहला पार्ट है ना। Where a person would, if he were living, have a right to institute a suit or make an application, dies before the right accrues, or where a right to institute a suit or make an application accrues only on the death of a person. मेरे ख्याल एनफ रिपीटेशन हो गया। आगे बढ़े अब, ठीक। दिस इज, ये कंपाइल करके देख सकते हैं आप ये। दिस इज वेयर ए पर्सन, कौन से व्यक्ति? इफ ही वर लिविंग, यदि वो जीवित होता, who would have a right to institute a suit or make an application. He dies before the right accrues, or this right to institute a suit accrues only on the death of the person. मेरे ख्याल से अब तो बहुत बढ़िया हो गया आपके लिए। दोनों बातें आ गई इसमें, इस स्लाइड में दोनों बातें आ गई। या तो उसकी डेथ बिफोर एक्रूअल ऑफ द हो रही है, या एक्रूज ऑन द डेथ एक्रूअल हो रहा है, सेम डे हो रहा है। यू गॉट इट? Then period of limitation shall be computed from the time. In that case, period of limitation shall be computed from the time when there is a legal representative of the deceased. It means if there is no legal representative, then time will not start running. Limitation period will not start running. The period of limitation shall be computed from the time when there is a legal representative of the deceased. And जो खास बात है, प्लीज हाईलाइट दिस वर्ड, कैपेबल। कैपेबल ऑफ इंस्टीट्यूटिंग सच सूट और मेकिंग सच एप्लीकेशन। तो देयर आर टू थिंग्स। पहली बात,
अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड है, डेथ हो गई है ऑन और बिफोर द एक्रूवल ऑफ राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन, in that case limitation period will not start running. Okay, it will start only when there is a legal representative of the deceased. और खास बात क्या है, not only the legal representative but he must also be the capable of instituting such suit or make an application. Suppose if there is a legal representative but he is not capable, again time limitation period of limitation shall not be computed. It will not start running. The period of limitation shall be computed only when he is capable of instituting the suit. So there are two requirements basically. First of all, there must be a legal representative, and second, he must be capable of instituting such suit. समझ में आ रही बात? Now in this case, when can you say he is capable of instituting such a suit? It means that he is not subjected to any legal disability as per section 6. Please go to have a reference to section 6. Section 6 में there are 3 legal disabilities: minority, lunacy और insanity, है ना, idiocy. This is section 6. I show you for reference. This is section 6. If a person is a minor, insane or an idiot, minor, insane or an idiot, these persons are not considered capable of instituting a suit. So if you read it like this, suppose a person dies leaving a minor son, in that case he has a legal representative, but that son is not still capable of instituting the suit. Are you getting this point? तो ये आपको देखना पड़ेगा इसमें कि जो प्रीलिम्स में भी आपसे पूछेंगे, मेंस में पूछेंगे, ये टेक्निकलिटी ये यही है कि ही मस्ट बी कैपेबल, ये ध्यान रखना आप लोग ये। और जो डेथ का टाइम है वो दैट इज व्हाट, बिफोर, ऑन और बिफोर दे कर लेंगे आप, ठीक, बढ़िया देखिए। सो दिस इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड, कहाँ से, फ्रॉम द टाइम व्हेन देयर इज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड capable of instituting such suit or making such application. हो जाएगा, कर लेंगे आप लोग। Now please my request, humble request with folded hand is this, please learn 16(1) verbatim. 16(1) को verbatim याद करना है आप लोगों ने। क्यों याद करना है? Because this is very important for your mains. इसमें आप फिर एक भी फ्रेज छोड़ देंगे अगर आपने अपनी लैंग्वेज को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की, तो there are chances that you may leave few words. एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट हेयर। लीगल रिप्रेजेंटेटिव लिख दिया लेकिन कैपेबल छोड़ दिया, यू कैन मिस। अगर डेथ बिफोर वाला लिख दिया, ओन वाला पार्ट नहीं लिखा, देन यू विल बी मिसिंग समथिंग। तो इन सच केसेस व्हेन द सेक्शन इज सो ड्राफ्टेड, सो नाइसली एंड सो प्रिसाइसली ड्राफ्टेड दैट यू कैन नॉट अफोर्ड टू लीव इवन ए सिंगल फ्रेज, then it is advisable that you should learn that section verbatim. So that will help you, and it's not difficult. Only what will happen, if you want to study in your way, it will take 5 minutes or 10 minutes. In my own way, it will take 20 to 30 minutes per section. But after 30 minutes, जो level of perfection आपका होगा वो बहुत बड़ा होगा। सब उससे अंतर कीजिए जो कुछ लोग 5-5 साल तक पढ़ाई कर रहे हैं, आपका स्पैन ऑफ टाइम 1 साल से ऊपर नहीं लगेगा अगर इस तरीके से पढ़ लेंगे तो आप ही। तो अल्टीमेटली यू विल बी विनर। अभी के 5 मिनट या 30 मिनट में देखिए कि राइट नाउ आई कुड हैव फिनिश्ड इन 5 मिनट्स, नाउ इट्स टेकिंग 30 मिनट्स। तो आप कहीं और से टाइम बचाइए, बट सेव योर टाइम फ्रॉम एनी अदर साइड, बट गिव इन्वेस्ट योर टाइम हियर इटसेल्फ। तो आई थिंक 16(1) इज कंप्लीट फॉर यू नाउ, कर लेंगे आप लोग। नाउ 16(2) इज टू बी लर्नड एंड अंडरस्टूड इन द सेम एनालॉजी। Here it was the case of plaintiff. Here it was the case of plaintiff. In case of 16(2), it is the defendant. Otherwise, everything is same. 16(2). Where a person against whom, तो these are the crucial word, against whom, जिसके विरुद्ध
if he were living a right to institute a suit or make an application would have accrued dies before the right accrues. ओके, तो प्लीज सी दिस, ये स्लाइड आपको फिर वैसे की वैसे है. वेर ए पर्सन, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? डिफेंडेंट की. इफ ही वर लिविंग, यदि वो जीवित होता, अगेंस्ट whom a right to institute a suit or make an application have accrued. So in my example what I have said कि अगर मैंने किसी व्यक्ति को 10 लाख रुपए लोन के लिए दे दिए एंड डे ऑफ रिपेमेंट इज फिक्स नाउ, कि उस डेट को आप मेरा लोन वापस कर दोगे, और उससे पहले उसकी डेथ हो जाती है. मान लीजिए 1 अप्रैल को मैंने लोन दिया और 30 अप्रैल इज द डे ऑफ रीपेमेंट. सही है. सपोज व्हाट इज द डेट ऑफ लोन? लोन वाज डिस्बर्स्ड ऑन 1st of April. It was to be repaid by 30 April. So now in this case, if he doesn't pay on 30 April, यदि वो 30 अप्रैल को पेमेंट नहीं करता है, then cause of action would arise on 30 April. Before that I cannot bring suit because cause of action will arise only when he failed to repayment. है कि नहीं है? So 30 April is the crucial day. Now I am alive, I am having right to make a suit in this case. बट द पर्सन हु हैव टेकन लोन फ्रॉम मी, जिस व्यक्ति ने मुझसे लोन लिया था वो व्यक्ति मर जाता है. तो अब मैं क्या करूं? मैं किसके खिलाफ सूट लेकर आऊंगा? नाउ समझ रहे हैं बात ये? या वो व्यक्ति 30 से पहले यानी कि 29 को मर जाए, या वो ऑन द डे ऑफ कॉज ऑफ एक्शन 30 अप्रैल को मर जाए वो. इन दैट केस तो सेम थिंग जैसे हम लोगों ने 16(1) को पढ़ा है वैसे ही हम लोगों को 16(2) को समझना है. अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम. In that 16(1) it was the case of plaintiff who was having right to institute a suit, जिसको सूट लाना था. 16(2) is what? जिसके विरुद्ध सूट लाना है, बस. This is the only difference. Then next, or where a right to institute a suit or make an application against any person accrues on the death of such person. कर लेंगे इसको. आप ऐसे देख लीजिए, दोनों ही बातें हो गई. Dies before the right accrues or on right, such right accrues on the death of such person. ठीक है. देखिए ये कौन सा व्यक्ति है? Where a person if he were living against whom, बस ये वर्ड क्रूशियल है. against whom right to institute a suit or make an application would have accrued. यदि वह व्यक्ति जीवित होता तो उसके विरुद्ध वाद दायर करने का या एप्लीकेशन फाइल करने का राइट मिल गया होता, उसके खिलाफ मिल गया होता. See, right to institute a suit or make an application would have accrued against such person. कब? If he were living, but unfortunately he dies before the right accrues, or he dies only on the when the right such right accrues. So this is the case of death on or before the actual of right. 16(1) is dealing with the death of plaintiff as well as the death of the defendant as well. 16(1) is dealing with the death of plaintiff. 16(2) is dealing with the death of defendant. I hope it is very much clear to you now. Now, in that case, the period of limitation shall be computed from the time when there is a legal representative of the deceased against whom the plaintiff may institute such suit or make an application. So, same thing. कर लेंगे आप. तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड. दिस पूरा का पूरा जो डायरेक्ट लैंग्वेज है उस पर क्वेश्चन आया हुआ है पूरा 1 और 2 को मिला करके. कर लेंगे आप ये लोग भी. नाउ यू कम टू 16(3). Nothing in this subsection 1 और subsection 2 applies to suits. दिस ये आपका एक्सेप्शन मान लीजिए. ये स्कोप सेक्शन 16(3) क्लॉज 3 इज डीलिंग विद द स्कोप. स्कोप मीन्स कितना इसका विस्तार है, कहाँ कहाँ पर ये अप्लाई होगा, कहाँ पर अप्लाई नहीं होगा. तो ये 3 चीज़ें हैं. राइट टू एनफोर्स राइट्स ऑफ प्रियम्पशन, टू सूट फॉर द पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड ऑफ ए हेरिटरी ऑफिस. इन पर अप्लाई 16(1) एंड 16(2) पर. जो 16(1) है और 16(2) हैं इन केसेस में अप्लाई नहीं होंगे. जैसे इसको ऐसे देख सकते हैं आप. ये सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 2 ओके डज नॉट अप्लाई टू सूट्स व्हाट टू एनफोर्स राइट्स ऑफ प्रीएम्पशन.
एक बात, और सूट्स फॉर पोजेशन ऑफ व्हाट, इफ द सूट इज फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और इफ द सूट इज फॉर द पोजेशन ऑफ हेरिटरी ऑफिस। इन तीन केसेस में 16(1) एंड 16(2) अप्लाई नहीं होंगे। एंड दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज फॉर दिस प्रोविजंस कंटेंट इन सेक्शन 16 ऑफ लिमिटेशन एक्ट आर नॉट एप्लीकेबल टू, ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। सूट्स टू एनफोर्स राइट्स ऑफ प्रीएम्पशन, सूट्स फॉर द पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और द हेरिटरी ऑफिस एंड बोथ ए एंड बी। जैसे ये रहा केस, आप देखिए, इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन और बिफोर द एक्रूअल ऑफ राइट टू सू, सही है। अब ये क्या करती है, एक्सटेंड्स द राइट टू सू। मैं इस पर अभी वो डील कर लेते हैं, क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कैसे कैसे आपके। दिस इज अगेन प्रोविजंस कंटेंट इन सेक्शन 16 आर नॉट एप्लीकेबल टू सूट्स टू एनफोर्स राइट्स ऑफ प्रीएम्पशन, पोजेशन फॉर म्यूचुअल प्रॉपर्टी, हेरिटरी ऑफिस। अगेन आ गया। अगर आपने डायरेक्ट लैंग्वेज ढंग से पढ़ लिया, समझ लिया, सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स के यहीं से हो रहे हैं आपके। इन विच ऑफ सेक्शन इफेक्ट ऑफ डेथ बिफोर एक्रूअल ऑफ राइट टू सू इज प्रोवाइडेड, सेक्शन 16। तो जो हमने पढ़ा ऑल क्वेश्चंस, और ये जो क्वेश्चन मैंने दिखाए हैं आपको, दीज आर द समरी ऑफ क्वेश्चंस आज एवरीवेयर, कहीं पर भी हो, डीजीएस हो, यहाँ पर हो, ये सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे गए हैं। बस कर लेंगे आप। नाउ कुछ चीज़ें डिटेल में जो समझ नहीं है आपको, छोटी मोटी चीज़ पढ़ रहे हैं, प्लीज दे दिस। सेक्शन 16 का व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल इन दिस section adopts general principle that unless there is a completed cause of action limitation cannot run। और यहीं से क्वेश्चन आता है, इस फ्रेज को अच्छी तरह हाईलाइट कर लीजिए, अपने नोट्स में याद कर लीजिए। completed cause of action, unless there is a completed cause of action limitation cannot run means what, unless there is a person who can sue and a person who can be sued, जब तक ऐसा व्यक्ति ना हो कि जो सू कर सकता है या सू हो सकता है, तब तक देयर कैन नॉट बी कंप्लीट कॉज ऑफ एक्शन। तो 16(1) की जो रिक्वायरमेंट, सेक्शन 16 रिक्वायरमेंट है कि फॉर द रनिंग ऑफ लिमिटेशन पीरियड देयर मस्ट बी कंप्लीट कॉज ऑफ एक्शन। जब तक वही व्यक्ति नहीं है जिसको सू किया जा सकता है, जब तक वही व्यक्ति नहीं है जिसको जो सू करना चाहे, जिसको सू करने का राइट है, तो हाउ कैन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन रन। दिस इज द बेसिक थिंग। सो ये रही आपके लिए समझने के लिए जनरल प्रिंसिपल। व्हाट इज द जनरल प्रिंसिपल? जनरल प्रिंसिपल पर किसी भी सेक्शन के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, मेंस में आपको लिखना पड़ेगा। if they discuss the, what can be the question means, discuss the effect of death on the period of limitation, then you will have to write that section 16 deals with the effect of death. According to this section, this is this section is based on the general principle that this करके समझे आपने यहाँ पे। तो ये लाइनें काम की बातें लिखी मैंने केवल आपके लिए। व्हाट इज दिस, कि अगर कॉज ऑफ एक्शन कंप्लीट नहीं है देन लिमिटेशन कैन नॉट रन। इफ द कॉज ऑफ एक्शन इज नॉट कंप्लीटेड देन दिस इज लिमिटेशन पीरियड कैन नॉट रन। बस ये इफ द पर्सन हु कैन नॉट सू और ए पर्सन हु कैन बी सूड ये नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है, देन कॉज ऑफ एक्शन इज नॉट कंप्लीटेड। when there is the person who can sue or who can be sued does not exist, अस्तित्व में ही नहीं है, then this is cause of action is not complete, and when the cause of action is not complete limitation cannot run। सही है? in other words limitation cannot run unless there is a person who can sue or who can be sued। अगर ये व्यक्ति नहीं है who can sue or who can be sued then limitation period cannot run। बहुत बेसिक बात है इसमें बस ये। लेकिन खास बात ये है इसमें जो मैं आपको पढ़ा चुका कि जो वर्ड्स आए हैं, ए पर्सन कैपेबल ऑफ इंस्टीट्यूटिंग सच सूट, कैपेबल ऑफ इंस्टीट्यूटिंग, इसको आप लोगों ने इंटरप्रेट करना ही पड़ेगा। इन दिस मींस ए पर्सन नॉट अंडर सच डिसेबिलिटीज एज आर मेंशन्ड इन सेक्शन 6। सेक्शन 6 में जो डिसेबिलिटीज है माइनर इडियोसी एंड दिस इज माइनर इंसैनिटी और इडियोसी, सेक्शन 6। तो कैपेबल, ये जो वर्ड है फिर कैपेबल ऑफ सोइंग, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, इट इज इक्वल टू व्हाट, नॉट अंडर लीगल डिसेबिलिटी टू सू। इफ ही इज अंडर डिसेबिलिटी टू सू इट मीन्स सेक्शन 16 विल बी एप्लीकेबल इन दिस केस। कर लेंगे आप लोग अब? ठीक है जी। मियर, वही बात आगे रिपीट कर रहा हूं,
Thus the mere existence of a legal representative of the deceased is not sufficient for the purpose of section 16. केवल मृतक का अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका कैपेबल होना जरूरी है। सही है। अब कहां कहां पर एप्लीकेबल नहीं है आप देख चुके हैं पहले भी। राइट टू प्रीएम्पशन पर, पोजेशन ऑफ म्यूचुअल प्रॉपर्टी, पोजेशन ऑफ हेरिटेज ऑफिस में नहीं है। एंड दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू अपील्स ऑल्सो, अपील ऑल्सो, बिकॉज कहां पर है, दिस इज व्हाट, राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन। दिस सेक्शन अप्लाइज टू सूट्स एज वेल एज एप्लीकेशन बट नॉट द। तो यहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा आपसे। एंड दिस कैन बी द डिस्कस द स्कोप, discuss the scope of section 16. It can be question in your mains. Then you will have to apply कि where section 16 does not apply, where it applies and on what conditions it apply. Effect of death में क्या होगा कर लेंगे। So suits and applications पर apply होगा, appeals पर apply नहीं होगा। बार बार रिपीट क्यों दिखा रहा हूं इसको, क्योंकि यहां से आप क्वेश्चन गलत करके आएंगे, संभावनाएं हैं। पूरे के पूरे लिमिटेशन एक्ट में यही एक गोरख धंधा है कि ये सूट पर अप्लाई होगा, एप्लीकेशन पे होगा, अपील पे होगा। इतना मिक्सचर है, देयर इज नो लॉजिक अनलेस यू रिमेंबर इट। कोई ऐसा है नहीं कि एक कोई लॉजिक लगा के याद कर लो इसको आप। यू विल हैव टू मेक योर ओन नोट्स रिगार्डिंग दैट विच सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर अपील्स। सेक्शन 5 में है अपील्स, ठीक है, कर लेंगे। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको ये है कि सेक्शन 16 इज नॉट एप्लीकेबल टू केसेस वेयर डेथ अकर्स आफ्टर राइट टू सू एक्रूज। सेक्शन 16 की हेडिंग में ही लिखा हुई बात ये। सेक्शन 16 की हेडिंग में क्या है, दिस इज इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन और बिफोर द एक्रूअल ऑफ राइट टू डाई। सेक्शन 16 अप्लाई तभी होगा जब राइट टू सू एक्रू होता है, कब, बिफोर, सॉरी डेथ हो जाए, ऑन और बिफोर द राइट। अगर आफ्टर होगा तब क्या होगा, इसको समझने की जरूरत है। देखिए गो फॉर सेक्शन 9। सेक्शन 9 देखिए आप लोग जरा एक बार। सेक्शन 9 continuous running of time where once time has begun to run no subsequent disability or inability to institute a suit or make an application stops it। सेक्शन 9 को हम लोग को डिटेल में पढ़ चुके हैं। सेक्शन 9 क्या कहता है कि एक बार टाइम हैज बिगन टू रन, एक बार लिमिटेशन पीरियड की कैलकुलेशन शुरू हो गई, देन कोई सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनेबिलिटी विल नॉट स्टॉप इट। नाउ इन दिस केस इफ द डेथ happens after the accrual of right, it means what, time had started to run where the cause of action has accrued to or against the person during his lifetime। जब वो जीवित था, मान लीजिए हमने जो एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं कि 30 अप्रैल को उसे पैसे वापस करने थे, जिस व्यक्ति ने पैसे लेने हैं, द पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू रिकवर, if he dies on 1st May, if he dies on 1st May, it means what, already time has started running. Now section 16 will not be applicable in that case. He must die either before 30 April or on 30 April. If he dies subsequently, then section 16 will not be applicable. And this is the technical issue. During your objective exam, prelims exam, you must be very careful in the language part कि exactly death, when this death is happening, the incident of death is taking place whether on or before or after the accrual. So timings of death are very important in this. Section 16 is not applicable to cases where death occurs after right to sue। कर लेंगे आप, प्लीज रेज हैंड अगर यहां तक बात समझ में आ गई तो। ठीक, सही। सेक्शन 16 में वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फैक्ट टू बी नोटेड इज व्हाट, प्लीज सी द लैंग्वेज ऑफ 16(1). This is 16(1). The period of limitation shall be computed from the time when there is a legal representative of the deceased capable of instituting such suit or making such application. The words phrase capable of instituting such suit, it means
that there must be a legal representative of plaintiff and he should be capable of instituting such suit. तो capability, it means absence of any legal disability will be seen in case of plaintiff. Are you getting this point? In case of plaintiff, if the plaintiff dies as per section 16, यानी कि on or before, then time will not run against unless there is a legal representative of the deceased and he must be capable also. Now go to section 16(2). See the language of this. Period of limitation shall be computed from the time when there is a legal representative of the deceased against whom the plaintiff may institute such a suit or making such an application. मुझे तो दिख नहीं रहा capable of, ये तो कहीं है नहीं कहीं. It means if there is a minor son of the defendant, capability of, ये जो line है, I hope कि you are appreciating this, capable of instituting. तो capability यानी कि absence of legal disability will be seen only in case of plaintiff and not in case of defendant. Section 6 जब पढ़ा था तभी हम लोग डिस्कस किया था ये. This plaintiff के केस because he is bringing the suit. He need not to wait कि when the defendant will be capable to defend. Plaintiff need not to wait कि भाई ये बेटा पहले इसका बड़ा हो जाए तब suit. He is not in such kind of legal obligation anything. Are you getting this point? समझ रहे बात ये? सपोज कीजिए मैंने किसी व्यक्ति को 10 लाख रुपए दिए, 30 अप्रैल को उसने वापस करने थे, नहीं दिए और वो मर गया उससे पहले, लेकिन उसका वो छोड़कर गया है 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा है ना, जो कि माइनर है. तो मेरे लिए तो टाइम विल स्टार्ट रनिंग नाउ. आई विल हैव टू इंस्टीट्यूट अ सूट विद इन टाइम पीरियड नाउ. आई विल नॉट हैव टू वेट कि उसका बेटा पहले का 18 साल का होगा. नो, समझ रहे बात ये? इट इज कैपेबिलिटी ऑफ दिस, कैपेबिलिटी ऑफ this is required only in case of plaintiff, not in case of defendant. And now this is the difference. And please जब objective आप करेंगे तो उसको appreciate करना. This is what 16(2) में requirement क्या है? There when there is a legal representative of the deceased defendant है ये. The limitation period of limitation shall be computed from the time when there is a legal representative. Section 6 में सेक्शन 6 में भी यही बात थी. कौन सा पर्सन था? सेक्शन 6, वेयर ए पर्सन एंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट ए सूट और मेक एन एप्लीकेशन, ही इज द प्लेंटिफ. सेक्शन 6 इज डीलिंग विद द लीगल डिसेबिलिटी ऑफ द प्लेंटिफ. सेम थिंग विद सेक्शन 7, सेक्शन 8, दीज आर डीलिंग विद द लीगल डिसेबिलिटी ऑफ द प्लेंटिफ, नॉट ऑफ द डिफेंडेंट. याद रखेंगे? रखेंगे, कर लेंगे. नाउ जी, थैंक यू. तो दोस्तों आपको क्लास पसंद आई होगी. अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से. और इसी के साथ एक टिप और ले जाइए मेंस के लिए. मेंस के एग्ज़ाम में आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप क्वेश्चन को ढंग से आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है. कई बार देखिए क्वेश्चन होता है, आपका क्वेश्चन है और वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. तो आप अपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ा कीजिए, उस क्वेश्चन को अंडरलाइन कीजिए, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स पर आपसे क्वेश्चन किया गया है, उस क्वेश्चन में एक ही कुछ सिंगल क्वेश्चन है या 2-3 क्वेश्चन का मिक्सचर है, उनको ढंग से समझ करके तभी आंसर लिखिए. कई बार स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि उन्होंने केवल टॉपिक देखा, उन्होंने टेल क्वेश्चन नहीं देखा या कितने क्वेश्चन उसने पूछे गए हैं ये नहीं देखा और 1 या 2 पार्ट उन्होंने छोड़ दिया. तो ऐसा आप ना करें, उससे आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा कट हो जाते हैं. तो अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ें, उसमें ये समझें कि कितने पार्ट्स इसमें पूछे गए हैं, क्या क्या पूछा गया है और उन सभी क्वेश्चंस के आंसर को देने की कोशिश करें आप. ये थैंक यू वेरी मच.